Hello children. So you have guessed correctly. Today we are going to start with your first lesson of economics, right? Now yesterday you got a big video and we completed the second lesson of BA, and it was a bit too much because we were doing 10 to 15 minutes videos, and suddenly you got a 44-minute videos. So what I will suggest is that as far as suppose say Henry Fayol's 14 principles are there. So what you can do is go through the video till 7 principles, and then watch the letter 7. So go half by half and then prepare the 14 principles. Similarly, you prepare the classification. You look the video till then you prepare the contribution of Peter Drucker in modern management. That is the last part of the video. So you can do it by and by, but you need to prepare everything. You need to take the notes whenever you are getting videos. You have to take the notes also, so it is easier for you to prepare. So I make it a point to give you proper notes. So today we are going to start with the economics lesson, and we have taken the topic first, that is bar diagram. Okay, so I know in 11th standard you have done diagrams. You know what is a bar diagram. So here we are going to talk about the types of bar diagram first. The first is what? Simple bar diagram. Second is cluster bar diagram, and third is divided bar diagram. So first thing we are going to look at is simple bar diagram. So this is from your book. See, look here. This is a hypothetical example. Hypothetical का मतलब क्या है? Imaginary. It is an imaginary example. This is not a real statistical data of any authentic source. So this is just a hypothetical example, right? So it is about the sale of chocolates. So January, February it is showing 35. March, April it is showing 60. May, June is 65. July, August 40. September, October 50 boxes. And November, December 30 boxes. Sell in units of unit is 1 box. Okay, ऊपर लिखा है देखो, बाय मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप. तो जनवरी फरवरी में 35 बॉक्सेस बिके हैं. नाउ विल लुक हाउ द बार डायग्राम इज ड्रॉन. नाउ वन थिंग इज मिसिंग ओवर हियर. फर्स्ट थिंग, because whenever I will check your diagram, these are all the things that are required. तो फर्स्ट थिंग इज द, ये जो यहाँ पे ना फिगर 1.2, तो सिंपल बार डायग्राम. फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गिव द नेम ऑफ द फिगर. ओके, ऊपर दे दो या नीचे दे दो, दैट इज नॉट द इशू, बट यू नीड टू गिव इट नेम ऑफ द फिगर. देन यू नीड टू मेंशन y on the y axis. Here can you see? So this is y you need to mention here, and this horizontal axis is which one? X. So you need to mention x on the horizontal axis. So then next thing you need to mention what you are showing on the y axis. Here they are showing cells in units. Okay, then यहाँ पे जो हम बताते हैं ये स्क्वायर करके, इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने ये जो ब्लैक निकाले हैं बार, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इन यूनिट्स. तो सेल इन यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द bars. So that you need to show, but one thing is missing here is they have not shown the scale. So you need to mention the scale. So you can say the scale here. Suppose on the y axis का scale mainly आपको scale देना ही है. तो scale can be, when the figures are within 100, you can take the scale of 1 centimeter equal to 10 units. So that scale, let us suppose they have taken here 1 centimeter equal to 10 units. So that scale you have to mention here. Below this you have to mention, below या above, but you have to mention the scale of y axis particularly. And now on x axis we always give the like time period, name of months है ना. You can even write months over here. तो जो constant है वो हम कहाँ पे बताते हैं? x axis पे बताते हैं. जैसे countries के नाम हो गए, मंथ्स के नाम हो गए, क्रॉप्स के नाम हो गए, वो सब कहाँ पे जाएगा? एक्स एक्सिस पे. और जो वेरिएबल्स है, मतलब ये जो यहाँ पे जो डेटा है वो हम वेरिएबल्स इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बदलते हैं हर महीने, ये अलग अलग है, हर महीने ये बदलते हैं.
तो जो बदलने वाले हैं उसको क्या बोले जाते हैं, वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स यानी कि वेरी होते हैं, वेरी मीन्स चेंज, दे चेंज, सो वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या क्या देना है, क्या क्या बताना है मैंने बोला है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस बार डायग्राम। आई एम श्योर यू आर हैविंग द graph paper, you have a green graph paper or a graph book, so you need to have that, and in the end I'm going to give you the homework, so you need to complete that also without fail. Okay, so ये practice बहुत ज़रूरी है, and if you want you can draw this one also again. So this one if you want you need to do it, you need to draw this one again and the homework वाला, तो 2 बार डायग्राम एंड में आपको करने हैं. Now let us look. So I have got this kind of graph paper. So I have taken it. It is a white one. Okay. So like I told you, see, I have mentioned here. I have mentioned simple bar diagram. Okay. Then I have mentioned the scale. Can you see? Scale on y-axis. 1 centimeter equal to 10 units. And then I have mentioned the सेल ऑफ यूनिट वाला मेरा बार मैंने एक निकाल के दिखाया, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन एनी कलर, सो आई हैव लेफ्ट इट ब्लैंक. नाउ माई स्केल आई हैव रिटन 1 centimeter equal to 10 units, so that scale I have taken here on the y axis. On x axis I have mentioned कि I am showing months. I have given x, यहाँ पे x लिखा हुआ है, और ये मेरा क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. मुझे कितने चाहिए? देर आर टोटल 6. वी नीड 6 नंबर है अपने पास डेटा के, तो ये भी 6 चाहिए. तो मेरा जो x का है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, y का व्हाट इज़ माई स्केल, 1 centimeter इक्वल टू 10 यूनिट्स. और मेरा जो x है ना, जो आपका जो बार है, ग्राफ है, ग्राफ पेपर ग्रीन कलर का है, उसमें जैसे वो छोटे स्क्वायर होते हैं वैसे आप भी ले सकते हो. मेरा यहाँ पे जो बड़ा थोड़ा स्क्वायर है वो 2.5 पे है. ये जो है ना, यहाँ पे ये जो है, ये कितना है, ये जो बड़ा स्क्वायर है ये 2.5 पे आता है हर बार. तो ये 2.5 पे मैंने एक एक ये जो बीच वाले डॉट्स हैं ना, वो पहले मैंने मार्क कर दिए. मैं डिटेल में क्यों बता रही हूँ, आपको आता है ड्रॉ करना, मुझे ये नहीं मैं बोले कि आपको नहीं आता, बट मेरे को एकदम एक्यूरेट चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में एक बार समझा दे रही हूँ. तो मैंने ये 2.5 पे, ये पहले हर जो अपना बड़ा स्क्वायर है उस पर मैंने 2.5 पे 6 मार्क्स पहले लगा दिए. फिर मैंने उसके दोनों बाजू 2 छोटे बॉक्स का भी मार्क लगा दिया. समझ में आया? ऐसे 2 छोटे बॉक्स का भी मैंने मार्क लगा दिया. अभी मेरी जो पहली फिगर है दैट इज़ 35, तो ये 40 और 30 के बीच में मैंने ये 35 की लाइन अगेन 2 बॉक्स ये बाजू, 2 बॉक्स ये बाजू, और फिर मैंने उनको ज्वाइंट कर दिया. ठीक है. वैसे ही मेरी दूसरी फिगर है 60, तो ये 60 पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले मार ली, 2 बॉक्स यहाँ, 2 बॉक्स यहाँ. ये तो नीचे वाले तो पहले ही मार के रखे थे, उनको ज्वाइन कर दिया. फिर नेक्स्ट फिगर है 65, 60 और 70 के बीच में. ठीक है, तो वो भी मैंने मार्क कर ली. नेक्स्ट फिगर इज़ 40, ये अपना 40 वाला है, और ये है 50 वाला, और ये छोटू सा है अपना 30 वाला. बट एवरी टाइम मेरा जो मिड पॉइंट है उसके दोनों बाजू क्या है, 2 बॉक्सेस की जगह मैंने ली हुई है, और वो ऐसे मैंने बार डायग्राम बनाया. तो ये करने के बाद, ये क्यों मैंने इतना एक्यूरेटली सबको करना चाहिए कि मेरे 2 के बीच में देखो हर बार 4 बॉक्सेस छोटे छोटे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी 4 ही छोटे हैं. यहाँ पे 2 के बीच की गैप भी सेम होनी चाहिए. हर एक बार की विड्थ भी सेम होनी चाहिए. हर एक बार की विड्थ भी 4 छोटे बॉक्सेस हैं. देखो, हर एक बार की विड्थ भी 4 छोटे बॉक्सेस है. हर 2 के बीच की जगह भी 4 छोटे बॉक्सेस है. एंड तक आप देख पाओगे. ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए, और विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी सेम. ये बात आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. नाउ लुक हियर अगेन वी विल सी. थोड़ा सा बड़ा मैंने अभी यहाँ पे फिगर लिया है. ठीक है, सेम पॉइंट्स आई वांट टू अगेन एक्सप्लेन. तो एक्स एक्सिस पे मंथ्स है, पहला है जून, फरवरी, फिर है मार्च, अप्रैल. तो अगेन यू कैन सी ईच विड्थ ऑफ ईच बार इज़ 4 स्मॉल स्क्वायर्स. दैट मीन्स विड्थ ऑफ ईच बार इज सेम, and the gap between each bar is also 4 small squares. है ना, वो सेंटीमीटर से आप देख लेना. मेरा 2.5 है, तो इसी हिसाब से भी आप कर सकते हो. मैंने तो छोटे स्क्वायर से ईजी पड़ता है ज़्यादा, वैसे किया है. बट द थिंग इज़ दैट द विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी सेम एंड द गैप बिटवीन ईच बार शुड बी सेम. बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके,
दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज़ ज़ीरो वेयर द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मीटिंग, है ना। तो यहाँ पे दिस इज़ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये पहला जो बार है उसके बीच में भी दैट सेम 4 बॉक्सेस शुड बी लेफ्ट। तो सिर्फ ये सबके बीच में सेम नहीं, पहली जो अपना वाई एक्सिस की लाइन है और अपना पहला जो बार है उसके बीच में भी क्या होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस छूटना चाहिए। So these are the things that you need to remember. You have to be very, very accurate when you will draw your bar diagram. Okay. So in the end, after you finish drawing any, not only bar but any graph, you have to give analysis. So this also you know, but even then this is the first time that we are going through it, so I'm going to repeat everything. तो एनालिसिस कैसे देना होता है। अभी ये जो हमको यहाँ पे डेटा दिया गया है वो कोई ऐसे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है, इट इज़ अबाउट सेल ऑफ चॉकलेट्स, बट इवन देन वी नीड टू गिव द एनालिसिस। एनालिसिस में याद रखना कि मिनिमम यू नीड टू गिव मी मिनिमम 5 पॉइंट्स, ओके। इवन इन बोर्ड मिनिमम 5 पॉइंट्स यू आर सपोज टू गिव, मतलब मैक्सिमम आप 6 to 7 दे सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। इकोनॉमिक्स के पेपर में you cannot be sure about time, so you have to complete the whole paper. You are in a bit of hurry, but you have to give the analysis, and minimum how many points, 5 points you need to give. And even if you are in hurry while writing the paper, this is the very easy way of giving the analysis. First you mention what you are showing on the y axis, so easily you can write that 1 point. Y axis shows sale of chocolate in units. Then you mention what you are showing on the x-axis. X-axis shows months, okay. Then you give the maximum and minimum figures. The sale of chocolates was maximum in May and June. The sale of chocolate was minimum in November and December. So you can even mention the figure. I am not mentioned it, but you can mention the figure also. The sale of chocolate was whatever 60, 65, and that was the maximum in May and June. So that way you can mention, and so these are the 4 points you can give it easily. But the last point is very, very important. The last point needs to be always the point of conclusion. कैसा होना चाहिए, conclusion वाला point वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कैसे conclusion दिया है, डिमांड ऑफ चॉकलेट्स इज़ मोर इन वेकेशन पीरियड, क्योंकि हमको देखा गया कि मई एंड जून में ये मैक्सिमम होता है। तो एक मैंने कंक्लूजन दिया है कि डिमांड ऑफ चॉकलेट्स इज़ मोर इन वेकेशन पीरियड। आप अपने तरीके से अपने वाला कंक्लूजन दे सकते हो, बट लास्ट पॉइंट नीड्स टू बी ऑफ कंक्लूजन। इज इट क्लियर? सो एनालिसिस नहीं दोगे तो फिर 2.5 में से ही मार्क्स मिलेंगे। बाकी ग्राफ के मार्क्स एज यू नो 5 होते हैं, तो आधे होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे भी कटते हैं, और आधे होते हैं एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन ड्राइंग बार डायग्राम। जो अभी हमने इतनी देर तक बातें की वही सब इसमें आता है। तो पहला नंबर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। इवन इफ इट इज़ आस्क फॉर 2 मार्क्स, समटाइम्स 3 मार्क्स वाले में भी आस्क फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले कभी 3 में नहीं पूछते, कभी कभी तो 5 वाले भी 3 में पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम बोला जाता है कि भाई 3-4 पॉइंट दे दो, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर 3 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो आपको 5 जो भी पॉइंट्स है वो सभी के सभी तो देने ही पड़ेंगे। तो ऑल बार शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ एज नो डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय विड्थ। विड्थ हम क्यों इक्वल रखेंगे, क्योंकि वो कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करती नहीं है। तो ऑल बार्स की विड्थ शुड बी सेम, ऑल बार्स शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ, ओके। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, कभी 1 मार्क में पूछ लिया, बिकॉज नो डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द विड्थ। Length of each bar diagram represents the variable value on the y-axis related to that bar, so it is different. Length of each bar कैसे होगी, different होगी, because it represents the data, that is the variable. Now distance between the origin and the first bar, as I told you, I have showed you also, the distance between the origin, that is 0, and the first bar, as well as the distance between consecutive bars should be equal. So distance between all bars should be equal, and the distance between
y-axis and the first bar should be also equal to other distance between other bars. That is the third point. Understood? No? Distance between origin and the first bar as well as the distance between consecutive bars should be equal. x-axis is the base on which all bars rest. सब bars कहाँ पे एंड पॉइंट उनका होता है? ऊपर का तो अकॉर्डिंग टू डेटा होता है अलग अलग, जो उनका बेस है वो कहाँ पे होता है? दे रेस्ट ऑन द एक्स एक्सिस पे उनका बेस होता है. हॉरिजॉन्टल बार्स कैन बी ड्रॉन विथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. nowadays sometimes even horizontal bars are drawn. We are drawing vertical bars, है ना, but horizontal bars can also be drawn nowadays. Bars representing first data is the first one near the origin. जो पहला अपना डेटा है टेबल का, वो सबसे पहले किसके पास आएगा? ओरिजिन यानी कि वाई एक्सिस के पास पहले, ज़ीरो के बाद में जो अपने एक्स एक्सिस पे जो पहला पड़ेगा वो कौन सा होगा? एक्स एक्सिस पे जो पहला होगा वो पहला जो टेबल का डेटा होगा वो बार पहले बनेगा. एंड आफ्टर दैट अदर्स आर अरेंज्ड लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, ये लेफ़्ट में आ गया, फिर उसका नेक्स्ट उसके राइट में, फिर उसका नेक्स्ट उसके राइट में. इस तरीके से ये डेटा सीरीज़ की तरह बाकी के बार्स को रिप्रेजेंट करना है. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स that we need to consider when drawing a bar diagram. So this question you need to prepare this, you need to take the notes also. It is also given in your textbook if you have, so you can write it down in your notebook. And for today we are going to stop here. Okay, so next we'll do tomorrow. No, but before we stop I am going to give you the homework. So this is your homework. Use the following table to draw simple bar diagram. Can you see it properly? See? Use the following table. The table is about the size of India's population. Table पे क्या क्या दिया? Years दिए 1951 to 2011 and the source is Census of India. So this is a valuable information. It is not a hypothetical data. तो ये वैसे भी तुमको प्रिपेयर करना चाहिए टेबल, हाँ, क्योंकि टेबल के फिगर्स कैन ऑलवेज बी आस्क्ड फॉर MCQ. तो ये टेबल तो पहले कर ही डालो, वैसे भी पॉपुलेशन के लेसन के टाइम पे तुम करोगे ही, तो अभी इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. बट अभी तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? यू नीड टू ड्रॉ द सिंपल बार डायग्राम. सो पॉपुलेशन सेंसस की इंफॉर्मेशन है 2011 की, तो 15 को कौन से 1915 से लेके 2011 तक की. सो व्हेन यू विल ड्रॉ द सिंपल बार डायग्राम, you do it very accurately with all the points that we have discussed. You take care of those things, right? So that is your homework and you have to do it. Okay, and I will ask Bindya ma'am how I can get your homework so that I can check it also. And then what you will get will be this data, and the figure is also given in your textbook. So you will your figure will look something like this. Okay, so on your y-axis you will mention कि total population in crores you will be showing. In your x-axis you will mention the years and then you will give the bar diagrams. And top पे भी आप ऐसे figure लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा गया है. Now you will give the name on the top, simple bar diagram, जो कि बुक में नहीं दिया है, but you have to give it. And then scale भी तुमको देना है y-axis के. अभी यहाँ पे क्या है? 10 to 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 की भी आप ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि अभी जगह तो ज़्यादा है यहाँ पे. अगर चाहिए तो डिपेंड्स ऑन, बिकॉज फिगर क्या है यहाँ पे 140 अबव 100 जब होगी तब हम कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 लेना ज़्यादा सूट करेगा. 100 के ऊपर की जब फिगर होगी, 100 के अंदर की होती है तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स लेते हैं. 100 के ऊपर की होगी तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स लेंगे. इस तरीके से यू नीड टू कंप्लीट दिस सिंपल बार डायग्राम. ओके.